Hello everyone. I hope you all are safe and doing really very well. Today we will understand the most important accounting concept. This concept will basically explain how accounting works, how actually accounting is done. Before we understand this concept, we need to understand certain terms used in accounting. Though I've used these terms many times in my previous videos, but we'll understand these terms in more detailed manner today. The terms are assets, liabilities, current, non-current, equity. Five terms: assets, liabilities, current, non-current, and equity. Now, what are assets? Assets are something which are owned by the business at a particular accounting date. Assets are something which are not meant for the sale in the ordinary course of business, but are meant for the purpose of generating inflow of resources, money, or economic benefits. जो हमारे असेट्स होते हैं उन्हें हम बेचने के पर्पज से, बिजनेस उसे बेचने के पर्पज से होल्डिंग करता है, बल्कि उन्हें यूज कर कर इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज या इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं बिजनेस के लिए. जैसे कि मैं कहूँ मशीनरी, बिजनेस के पास मशीन है, मशीन को यूज करके गुड्स बनाए जा रहे हैं, गुड्स को बेचा जा रहा है और इनफ्लो ऑफ मनी और रिसोर्सेज हो रहा है बिजनेस के लिए. तो मशीन इज एन एसेट फॉर बिजनेस. मशीन को बेचने के पर्पज से नहीं खरीदा है, मशीन को यूज करने के लिए, लंबे टाइम तक उसके बेनिफिट्स लेने के लिए परचेज किया गया है और मशीन इज एन एसेट फॉर बिजनेस. Then there are liabilities. What do you mean by liabilities? Liability means something which is repayable by business at a particular accounting date. एक पर्टिकुलर डेट पे बिजनेस को जो भी अपने उधार या जो भी चीज़ों के लिए पेमेंट करनी है, चुकता करना है, उसे हम कहते हैं लाइबिलिटी बिजनेस की. बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बिजनेस को रीपे करना है, जो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज या आउटफ्लो ऑफ मनी इन्वॉल्व करेगा, those are called liabilities at a particular date. Like for example, business ने कोई लोन लिया है, लोन रीपे करना है, तो लोन will be a liability for business. या जैसे हमने पढ़ा था कि बिजनेस ओनर ने कुछ कैपिटल बिजनेस में लगाई है, तो बिजनेस के लिए वो कैपिटल एक लाइबिलिटी होगी टुवर्ड्स द ओनर, जो बिजनेस को अपने बिजनेस ओनर को चुकानी है. Then what do you mean by equity? Equity is also a liability for business. All the capital that has been invested by the owners in the business, all the profits that have been made by the business in many years and that have been accumulated are basically called equity. Equity is also a liability that is repayable to the owners, but at the end when all other liabilities have been paid. These are basically called owners funds or shareholders funds. Like जैसे अभी हमने पढ़ा कि कैपिटल लगाई बिजनेस ओनर ने, तो कैपिटल विल बी अ लाइबिलिटी, but at the same time it is also called equity of the business. Then what do you mean by current and non-current? Both assets and liabilities can be current and non-current. Any asset which is convertible into cash in a year is called a current asset. If it is convertible into cash after a year, it is called non-current asset. Liability which is repayable in a year is called current liability. Which is to be paid after a year are called non-current liabilities. तो जो 12 महीने में या पूरे एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाए या रीपे हो जाए, उन्हें हम करंट कहते हैं, एसेट और लाइबिलिटी. और जो 12 मंथ्स के बाद कन्वर्ट होंगे कैश में, उन्हें हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं. जिन्हें हमें 12 मंथ्स के बाद पे करना है, उन्हें हम नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं. सो दीज वर द टर्म्स जो मैं चाहती थी कि यू अंडरस्टैंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड इन आवर वीडियो टुडे. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग इक्वेशन. एक अकाउंटिंग इक्वेशन दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय दीज टर्म्स व्हिच आई हैव जस्ट मेड यू अंडरस्टैंड. The accounting equation is equity plus liabilities is equal to assets. अगर मैं इक्विटी और लाइबिलिटीज को ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो कंपनी के बिजनेस के असेट्स आ जाएंगे. ये भी कह सकते हैं कि इक्विटी इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज. इक्विटी इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज. इस अकाउंटिंग इक्वेशन को वील अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर बिजनेस की बुक्स में क्या असेट्स और लाइबिलिटीज खड़े हैं वो मैंने ड्रॉ करे हैं. उसके बेसिस पर हम समझेंगे कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप की जाती है. बिजनेस के पास फॉर एग्जाम्पल कैपिटल है 10 लाख की, लोन ले रखा है थर्ड पार्टी से 5 लाख का. कुछ क्रेडिटर्स है. क्रेडिटर्स मैंने समझाया था. क्रेडिटर्स का मतलब ये होता है कि बिजनेस ने कुछ मटेरियल परचेज करा, उसकी पेमेंट फुल में नहीं करी, पेमेंट कुछ बाकी है करनी, तो उसे हम कहेंगे क्रेडिटर्स, यानी बिजनेस को चुकाना है पैसा. क्रेडिटर्स ऑफ 2 लाख. मशीन परचेज कर रखी है 5 लाख की. डेटर्स है 2 लाख के. डेटर्स मतलब हमने कस्टमर्स को गुड बेचे, उन्होंने पूरा पैसा नहीं चुकाया, कस्टमर्स को बिजनेस को पैसा देना है, तो हमारी बुक्स में वो डेटर्स के तौर पे खड़े हो गए ऑफ 2 लाख, यानी 2 लाख रुपए मुझे कस्टमर्स से लेने हैं फॉर द गुड्स दैट हैव सोल्ड टू देम. देन देयर इज कैश.
बिजनेस का कैश या बैंक बैलेंस है 10 लाख रुपीस का। अब हम इसकी मदद से वील जनरेट द अकाउंटिंग इक्वेशन। कैपिटल जैसे कि मैंने आपको बताया था इज कॉल्ड इक्विटी, लोन इज कॉल्ड लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड लाइबिलिटी क्योंकि आपको रीपे करना है, मशीन इज योर एसेट जो आपको यूज कर रहे हैं बिजनेस में, आप उसको बेचने के पर्पज से नहीं रख रखा है, उसे यूज करके आपको बहुत सालों तक बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो ये आपका असेट हो गया। डेटर्स आर ऑल्सो योर एसेट क्योंकि ये आपके कैश में कन्वर्ट होंगे, डेटर्स आपको पैसा देंगे, आपको कैश मिलेगा, तो दिस इज एन एसेट एंड दिस इज कैश और बैंक बैलेंस ऑफ 10 lakhs, so this is also an asset for the business. Now the accounting equation reads equity plus liability is equal to assets. तो हम देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। Equity is your 10 lakh, liabilities is your 5 plus 2 7 lakh and your assets are 5 plus 2 plus 10 17 lakhs. So this is how accounting equation is generated. अब अगर आपसे कोई बोले कि केवल इक्विटी बताइए तो इक्विटी ये है, इक्विटी इज ऑल्सो इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। असेट्स आपके 17 lakhs के हैं, लाइबिलिटी आपकी 7 lakh की है, तो इक्विटी इज 10 lakh। यस, इक्विटी इज 10 lakh. So this is accounting equation that has been generated. This is accounting equation basically. Now we will move forward in understanding this aspect called dual aspect concept, which is very, very important concept of accounting. This basically reads how accounting is done, how accounting actually works. Every business transaction will always have a double impact. It will never have a single impact. कोई भी business transaction होगी उसका books में हमेशा double sided impact पड़ेगा। अगर वो आपकी किसी एक asset को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो कहीं ना कहीं किसी और असेट को या किसी और लाइबिलिटी को भी टच करेगा विद द सेम अमाउंट। मैंने इस पूरी बात को समझने के लिए आई हैव ड्रॉन दीज इक्वेशंस इन फ्रंट ऑफ यू, और वी कैन से द कनेक्शंस. ओके, this reads if an asset, A stands for asset, if an asset increases or decreases then another asset will decrease or increase. अगर एक asset increase हो रहा है तो दूसरा asset decrease होगा, अगर एक asset आपका decrease हो रहा है तो दूसरा asset आपका increase होगा. So there is an inverse relationship between two assets. अगर एक asset आपका increase होता है तो liability भी increase होगी, अगर asset decreases the liability will decrease. So there is a direct relationship between asset and liability. Similarly, if a liability increases, then another liability will decrease. If a liability decreases, then another liability will increase. So there is inverse relationship between two liabilities. If a liability increases, then other asset will also increase. If a liability will decrease, then the other asset will also decrease. So there is direct relationship between liability and asset. ये मैंने ड्रॉ करा है टू मेक यू एक्सप्लेन कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का डबल इम्पैक्ट पड़ता है. अगर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन आपके एसेट को कम कर रही है तो किसी न किसी दूसरे एसेट पे अगर इम्पैक्ट डाल रही है तो दूसरा एसेट आपका कम होगा, डिक्रीज होगा. हम एक दो एग्जाम्पल से वी अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन बिटवीन द assets and liabilities to understand the double aspect concept of any business transaction. Like for example, business ने मशीन खरीदी for rupees 5 lakh. मशीन is an asset और आपने खरीदी यानी आपने बैंक से पे करा या कैश के थ्रू पे करा, चेक काटा, आपने कुछ भी करा तो आपका बैंक या कैश बैलेंस भी उतने अमाउंट से कम हो गया. तो एक तरफ आपकी मशीन यानी एसेट इंक्रीज हो रहा है और उतने ही अमाउंट से आपका कैश या बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है. यानी जब भी कोई एसेट आपका इंक्रीज होता है तो दूसरा एसेट आपका डिक्रीज होता है. सिमिलरली बिजनेस की लाइबिलिटी है, बिजनेस का एक लोन है से रुपीज 5 लाख का. अब बिजनेस ने अपना ये लोन चुकाना है तो जब वो अपना ये 5 लाख का लोन चुकाएगा यानी उसकी लाइबिलिटी कम हो रही है, यानी हम कहाँ खड़े हुए हैं, ये लाइबिलिटी मेरी डिक्रीज हो रही है. इस लोन को चुकाने के लिए मैं अपना कैश या बैंक बैलेंस कम करूंगी, बैंक के थ्रू ही तो मैं अपने क्रेडिटर्स को पे करूंगी, तो मेरा कैश या बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा. यानी जब मेरी कोई लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो मेरा एसेट भी डिक्रीज हो जाता है. तो यानी हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का डबल इम्पैक्ट पड़ता है, विच वी कैन रीड थ्रू दीज इक्वेशंस और कनेक्शंस विच आर मेड ऑन द board. So this is your dual aspect concept, which simply reads that every business transaction will have a double side impact. I hope I'm very much clear with this concept. This concept is very important, guys. Please, if you have any queries, any comments regarding this whole explanation which I've made today, please drop me a comment in the comment box. And now it's time to share one of my tip of advice to all the students who are pursuing CA or who are in the field of accounting.
In my last video, I said that how articleship, especially for the CS students, of course, how articleship is so important and how you need to maintain a balance between articleship and your studies. आज मैं आपको अपना एक ऐसा मतलब टिप या एडवाइस दूंगी जो मैंने खुद ने भी पर्सनली अपनी लाइफ में अप्लाई करा है और मुझे बहुत हेल्प हुई है। मैं अभी भी करती हूँ अपनी चीज़ों में। जब मैं स्टडीज़ कर रही थी, टाइम ऑब्वियसली लिमिटेड होता था क्योंकि आर्टिकलशिप भी करनी होती थी, तो उस लिमिटेड टाइम को ना मैं हमेशा प्लान करके चलती थी। मेरा ना प्लान रेडी होता था। जब मैं सुबह उठती थी पढ़ाई के लिए, मैं क्लियर प्लान बना लेती थी कि आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, कल मुझे ये करना है, मेरे वीक में इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस चैप्टर में मुझे इतने आवर्स लगेंगे, इस चैप्टर में इतने आवर्स लगेंगे, टोटल मेरे पास इतना टाइम है पूरे दिन में पढ़ने के लिए। और इतने मैं पता है पूरा अपने दिन का शेड्यूल बांट लेती थी। इतना मेरा आना जाना आर्टिकलशिप, इतना मेरा सोना एंड ऑल, एंड ये मेरे पास टाइम बचेगा, इसमें मुझे पढ़ाई करनी है। इस चैप्टर में इतने आवर्स लगेंगे तो मेरे पास टोटल कितने आवर्स हैं और मैं कितना कंप्लीट कर पाऊंगी। मैं ना हमेशा अपने काम को प्लान करके चली और इससे मुझे ना बहुत हेल्प होती थी। क्योंकि कभी मुझे लगता था ना मैं टाइम कम या ज़्यादा कर रही हूँ, तो मैं या तो अपनी स्पीड बढ़ाती थी या कहीं ना कहीं मैं अपने किसी लेजर के टाइम को थोड़ा सा कम करती थी। और किसी दिन अगर मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया तो जितना मेरा छूटता था ना, आई डोंट कैरी इट टू द नेक्स्ट डे। मैं नेक्स्ट डे उसे कैरी नहीं करती थी, मैंने उसे छोड़ देती थी। मैं नेक्स्ट डे अपना नेक्स्ट डे का प्लान ही फॉलो करती थी। कभी भी कोई आने वाले डे में जब मेरा प्लान के से जल्दी हो जाता था, तो जो मेरा छूटता था चैप्टर, वो मैं उसे उस दिन कवर करती थी। तो आप लोगों को भी मैं स्पेशली टू द स्टूडेंट्स मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं प्लीज़ प्लान योर वर्क, प्लीज़ प्लान योर स्टडीज़। आप जब लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, आपको ये चीज़ बहुत हेल्प आउट करेगी। जब आप जॉब करने निकलेंगे, आप कोई भी काम करने निकलेंगे ना, ये प्लान करना विल हेल्प यू आउट इन अ वेरी वेरी गुड मैनर, यू नो। तो जो भी आपकी स्टडीज़ है उन्हें प्लान करके चलो, प्लान के स्टिक टू योर प्लान। कोशिश करो यू स्टिक टू योर प्लान, अनलेस कुछ ऐसा नहीं हो जाए जो रैंडम सा हुआ, विच वॉज नॉट इन योर कंट्रोल। एंड यू विल सी दैट आप यू विल फील सेटिस्फाइड एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने जितना सोचा मैंने उतना किया। सो दैट वॉज अ टिप ऑफ एडवाइस फॉर यू ऑल। आई होप मेरा ये एडवाइस किसी को हेल्प आउट करेगा। ये मैंने खुद ने भी प्रैक्टिकली अप्लाई करा था अपनी स्टूडेंट लाइफ में और मैं आज भी करती हूँ अप्लाई। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। Please share my video. Please subscribe to my channel if you have not subscribed earlier. Thank you. Bye bye. Take care.